Very good morning. Yes, we are back with a new conversation today, right? So we'll see something like it's like you want to lend some money, lending money or whatever you want to lend, okay? Whatever the thing you want to lend, we'll be seeing. So before getting into the conversation, as I always say, first jot down the keywords and then proceed further what you want to speak. So first we need the vocabulary for whatever conversation here. First we need the vocabulary. So let's do. Okay. Now first initially what the pattern. First you will tell the reason. फर्स्ट आप रीजन बताओगे कि क्यों आपको वो पैसा चाहिए, राइट? आपको व्हाई यू नीड दैट मनी, राइट? यू विल टेल दैट. नेक्स्ट, after telling or the reason or the situation, whatever situation you are in, first you will tell that. Then you will say how much you need, how much or what you need. What you need, what तो इधर much क्यों डाल रही है यहाँ पे? क्योंकि पैसा चाहिए तो will say much, right? But if you want to say, you want to ask someone a necklace or a sari or anything which is not money, then you will say whatever you require, whatever the material or the thing you require, you will tell that. Okay? Then you will say how long, for how long you need that, or when will you repay. अगर पैसा है तो कब रीपे करोगे, और अगर मटेरियल है तो कब रिटर्न करोगे, right? So this is the procedure you usually will ask, like what you will want, what is the situation or what is the reason, why are you asking that money, or why are you asking that that sari or the material or the bike or car or whatever you need. Then you will ask how, like what you want. Then you will ask to when will you return it back. So this will be your procedure, correct? Yes. Now what are the words you will use? You will use lend, you will use borrow, and you will use the time, whatever time you want it for. Okay. All these, this is the vocabulary mainly you will use. Okay. Right. So now what is the difference between lend and borrow? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कब lend यूज करने का, कब borrow यूज करने का. Can anyone type in the chat box and tell me what is the sentence you can type in lend and borrow? Yes. Can any one of you type कि lend एक verb form है, ये है. इसका third form क्या है? Lent. Second and third form lent है इसका. ये irregular verb. Irregular verb क्यों है? Irregular verbs और regular verbs मैंने सिखाया था, आपको याद है? Irregular माने अलग ed add नहीं होगा. रेगुलर वर्ब्स मींस ईडी ऐड होता है. यहाँ पे देखिए लास्ट में ईडी ऐड होता है. तो ये V2 और V3 है इसका फॉर्म. ये भी V2 V3 सेम आएगा. ये V1 है. ओके, ताकि आपको टेंस में यूज करने में इजी रहे, राइट? ओके, so shall I go and tell you, because I don't find anyone typing. The verb, regular verb में ed add होगा. Yes Preeti, yes, that's what I'm saying. Yes. So this is the regular verb because we have added ed. Irregular verb means it is like this: lend, lent will come. Now we will learn the Hindi meaning of this. Okay, so borrow, lend means आपको दोनों ही उधारी होता है, मगर lend means उधार देना होता है. borrow means उधार लेना. उस सेंटेंस के द्वारा हम लोग अभी समझेंगे. ओके, राइट? Now let's learn the sentence. How you can ask someone for money. Now उससे पहले अभी lend और borrow का
हम लोग एक एक सेंटेंस करेंगे। अभी मान लीजिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से कैन यू lend me your bike on Monday? ये सवाल है तो मैं ये क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। कैन यू लेंड मी योर बाइक ऑन मंडे? तो मैं यहाँ पे क्या पूछ रही हूँ, क्या आप सोमवार को अपनी बाइक को, बाइक भी बताओ या तो हिंदी में भी लिख सकते हो, बाइक उधार दे सकते हो? अभी यहाँ पर बोरो के साथ वही सेंटेंस ऐसे ट्राई करेंगे। कैन आई बोरो योर बाइक ऑन मंडे? क्या फर्क है यहाँ पे? कैन आई बोरो, ओके, यू कैनॉट से कैन आई लेंड योर बाइक ऑन मंडे। कैन आई लेंड योर बाइक तो गलत होगा। कैन आई बोरो योर बाइक ऑन मंडे, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ओके सोमवार को आपकी बाइक उधार ले सकता हूँ या सकती हूँ। ओके, डिफरेंस मालूम पड़ा? Did you get the difference? So what we are saying, can you lend me your bike on Monday? तो यहाँ पर देखिए उधार दे सकता हूँ। क्या आप सोमवार को अपनी बाइक उधार दे सकते हो? और यहाँ पे कैन आई बोरो योर बाइक ऑन मंडे, क्या मैं सोमवार को आपकी बाइक उधार ले सकता हूँ या सकती हूँ? ओके, व्हाट अबाउट दिस? ओके, डिड यू गेट द डिफरेंस? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको ये सेंटेंस में, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कैन यू, यहाँ पर कैन आई बता रही हूँ आपको, कैन आई लेंड योर बाइक ऑन मंडे? ये तो गलत होगा ना बेटा, ये रॉन्ग सेंटेंस है ना। कैन आई लेंड योर बाइक ऑन मंडे, आप कैसे मेरा बाइक लेंड करोगे? कैन आई लेंड योर बाइक ऑन मंडे? नो, बिकॉज ये आपकी बाइक ही नहीं है तो आप कैसे लेंड करोगे? ओके, इसीलिए ये गलत होगा। सो यू शुड नो करेक्टली वेयर टू यूज लेंड एंड वेयर टू यूज बोरो। लेंड माने क्या? लेंड माने क्या मैंने बोला था आपको? लेंड माने उधार देना होता है। ओके, so this will be wrong. Same way, if you want to use over here, can you borrow me your bike on Monday? Will be wrong. Can you borrow me here? Can I borrow your bike on Monday? Is only right. This is not right. Okay? हिंदी में क्या हो जाएगा? कैन यू बोरो में, बोरो माने क्या मैंने बताया था आपको? बोरो माने उधार ले, तो क्या मैं आप उधार ले सकता हूँ? ओके, तो ये गलत होगा। Now let's go to the conversation. Now you know the difference between when to use lend and when to use borrow. So now we'll go to the conversation. मान लीजिए यहाँ पर A और B के बीच में हो रहा है, A आ रहा है, वो बता पहले जो ग्रीटिंग्स, वो सब रेगुलर जो मैंने आपको इनिशियली आपको डॉक्टर और पेशेंट में दिखाया था, वो सब हर एक इसमें ग्रीटिंग्स ही पहले आएगा। पहले एक दूसरे के हाय बोलोगे, गुड मॉर्निंग बोलेगे, हाउ आर यू बोलोगे, वो सब आपका
रेगुलर रहेगा, हाउ आर यू, क्या भी है वो जो रेगुलर कॉन्वर्सेशन दैट विल टेक प्लेस एज यूजुअल। ओके, तो हम मेन कंटेंट पे आते हैं। ओके, तो शुरू शुरू करते ही मुझे पैसा चाहिए ऐसे थोड़े बात करोगे आप। व्हाट यू विल से, फर्स्ट यू विल से हाय हेलो हाउ आर यू, हाल हाल हवाल पूछेंगे एक दूसरे से कि कैसे है, घर पे कैसे है, ऑल दैट, एंड देन ओनली। अंजलि सोनी, लेंड का स्पेलिंग LEND है। ओके, यस, करेक्ट। कैन यू लेंड मी योर बाईसाइकिल ऑन संडे, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट। लेंड का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए अंजलि सोनी। Yes. So let's come to the conversation. The conversation is like A is asking B, I have lot of debts. अभी इधर डेप्ट करके नहीं पढ़ने का, ये इसका मतलब क्या है, कर्जा। ओके, तो इधर बी जो है साइलेंट है। ओके, तो डेट, डेट्स, आई हैव लॉट ऑफ डेट्स, डेट्स करके पढ़ने का, डेप्ट करके, ये बी जो है साइलेंट है, बी नहीं प्रोनाउंस करते हैं वहां पे। ओके, सो आई हैव लॉट ऑफ डेट्स, I wonder if you can help me, और इसके बदले I wonder if you can lend me रुपीस करके आपको जो भी अमाउंट है आप पूछ सकते हो। ओके, ये कॉन्वर्सेशन दोस्त और जो भी है जिससे भी हम पैसा मांगते हैं, मोस्टली इट विल बी नोन टू अस, तो बहुत फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है। तो वॉट एवर इट इज यू कैन आस्क। ओके, आई वंडर इफ यू कैन लेंड मी रुपीज, वॉट एवर इट इज, जो भी रुपया, मान लीजिए मैं यहाँ पर 1000 रुपया पूछ रही हूँ। ओके, आई वंडर इफ यू कैन लेंड मी 1000 रुपीज, रुपीज 1000 और 10,000 और, तो वो जो सामने वाला जो बी है, व्हाट कैन ही से, ही कैन either से नो ब्लंटली, कोई कोई नो, आई डोंट हैव ऐसे बताएंगे अगर बहुत ही क्लोज है, नहीं तो कोई बहुत फॉर्मली नो आई एम रियली सॉरी करके बताएंगे। या तो सॉरी बोल के, मैं जस्ट डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बता रही हूँ, बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, सो ये रब कर रही हूँ मैं। या तो आपको बताएंगे सीधा सॉरी बोल के, आई कांट लेंड यू मनी, और चाहिए तो रीजन देंगे यहाँ पे। रीजन माने क्यों नहीं दे सकते हैं, कोई कोई एक्सपैंड करेगा और उसका एक्सप्लेनेशन देगा। कोई कोई लोग समझते हैं कि मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके वो सीधा सॉरी आई कांट लेंड यू मनी ऐसे बोल सकते हैं। कोई कोई रीजन बताएगा कि मुझे ही कष्ट है और मैं नहीं दे सकता हूँ, और आई हैव टू पे फीस, और वॉट एवर इट इज, वॉट एवर द रीजन यू वांट टू गिव ओवर हियर, यू कैन गिव योर रीजंस इफ यू वांट टू, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर रीजन। मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रीजन बते हैं, सॉरी आई कांट लेंड यू मनी, आई हैव टू पे माई सन्स फीस, फी या फीस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लिखोगे क्योंकि यहाँ मेरे लड़के का फीस के, ऐसा ऐसे नहीं लिखोगे सन्स। ओके, ये गलत होगा, सन सन्स ये तो प्लूरल हो गया। ओके, ये प्लूरल हो गया। अपॉस्ट्रोफी एस जब भी आपको बोलना है डॉटर का, सन का, या में उसका, अगर, तब आप अपॉस्ट्रोफी एस डालोगे। ओके, इज इट क्लियर? सो सॉरी आई कांट लेंड यू मनी, रीजन बताना, आई हैव टू पे माय डॉटर सन्स फीस और डॉटर्स फीस। ओके, सो यू विल गिव योर ओन वैलिड रीजन इफ यू वांट टू। तो यहाँ पर अभी ए को बहुत ही जरूरत है, तो वो बोलेगा कि ओ ओके आई अंडरस्टैंड। पहले आपको, अगर आपको गर्ज है तो आप पहले उनका बात भी अंडरस्टैंड करोगे ना। ओके, आई अंडरस्टैंड, कैन यू लेंड मी रुपीज, कुछ तो निकले।
500 तो दे दो, कैन बी ₹500 फॉर नाउ। तो वापस आपके पास है तो आप दोगे, अगर नहीं है तो अगर अभी बोलेगा हे आई एम रियली सॉरी, हे आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प यू, या तो मे बी आई कैन लेंड यू ₹200, या जो भी आप दे सकते हो। Okay, so whatever you can, you give, or if you can't, some people, even if they have, they will not give. बहुत लोग अगर उनके पास है तो भी फ्रेंडशिप में लेन देन नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है उससे उनका रिलेशनशिप स्पॉइल होगा। Okay, some people they have some certain rules that because of money the relationship can get damaged, so they don't give nor they ask, na lena na dena. Okay, so they don't do it, but some people have the habit of asking, some people have the habit of giving back the money, or some people don't give. It depends from person to person. So any doubts in this till now? So I given you both the reply, hey I'm really sorry, what to say, I can't help you, maybe I can lend you rupees, like that you can say, right? Any doubts please ask me in the chat box. Yes ma'am करके बताया है, okay, right? No doubts? बोर्ड दिख रहा है? Right, okay, let me rub the board and I will give you more details on this, right? So बाद में क्या बोलेंगे, hey I'm sorry, तो thank you so much बोल के, thank you, sorry to bother you, sorry to bother you. अगर वाकई में उसको जेन्युइन पर्सन है तो बोलेगा तुमको कष्ट देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बॉदर यू माने क्या है, सॉरी टू बॉदर यू माने तुमको कष्ट देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ करके। ए ने पैसा मांगा इसलिए ए बी से सॉरी मांग रहा है, वो पैसा लेगा, और ए क्या बताएगा, आई विल रिटर्न बोलेगा या गिव इट टू यू भाई, आपको जब भी देना हो, अगले महीना 2 महीने के बाद जब भी है, दे विल गिव द टाइम। या तो इस आदमी को गरज रहेगी तो मगर मैं दे रहा हूं तुमको, आप मुझे सैटरडे अगले महीने तक मुझे फर्स्ट वीक में दे दो, आई कैन लेंड यू ₹200 प्रोवाइडेड यू रिटर्न बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक दे दोगे तो मैं ₹200 दे सकता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन है तो देन ही विल से यस श्योर आई विल, ऐसे बोलेंगे। बेबी शाह इज हैविंग डाउट, यस प्लीज, प्लीज टाइप कीजिए डाउट क्या है, या अनम्यूट करके पूछ लीजिए। यस, so basically yes baby Shah, are you able to unmute? If you are able to unmute, no doubt, okay, no doubt बताना चाह रहे हैं, okay, thank you, okay, मुझे लगा डाउट लिखा है तो नो डाउट। अभी आज भी वर्षा पटेल जी ने टाइप किया था, ऐसे टाइप किया था, सर यू वॉइस इज नॉट लिसन मी, ऐसे करके टाइप किया था। क्या ये सेंटेंस सही है वर्षा पटेल जी? आपको पहले ही सिखाया था, सिंपल, यू आर नॉट ऑडिएबल, सिंपल। ऑडिएबल आपको वर्ड नहीं आ रहा है तो सर आई कांट हियर यू, ओके, हियर यू और योर वॉइस, बस सिंपल, आई कांट हियर यू, ओके, ऐसा टाइप करने का, यू आर नॉट ऑडिएबल, आई सर आई कांट हियर यू, अगर ऑडिएबल आपको यूज करना, मगर ये सब वर्ड्स आपको यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट, ओके।
ऐसे ये, दिस इज नॉट राइट सेंटेंस, but good try, Varsha Patel. Essay you type in English. I'm very happy that you had the courage to type in English and write the sentence. Very good, Varsha Patel. But try to learn it in the correct way. Okay, next time do it. Yes, good, Varsha Patel. Good. Like this, you have to be sportive. Good. Okay. So simple. See, I can hear you. तुम्हारे मैं सुन सकती हूँ. I can't hear you. That's all. You are not audible. You are audible. You are audible. ये not निकाल दिया तो मैं सुन सकती हूँ. not डाला तो नहीं सुन सकती हूँ. बस simple. Clear. Let's go to the next. So is this conversation clear? How you will ask for money? Yes. Is it clear? Yes. So shall we go to the next? So today I will give you a small thing about so ये before concluding I'll give you lend means that same thing. यहाँ पे give, borrow means you will take or receive. इंग्लिश में भी लिख लीजिए उसका दूसरा वर्ड जो मैंने हिंदी में बताया था, वो इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में इजी वे में समझने के लिए आप ये लिख लीजिए. lend means give. ओके, उधार देना होता है ना. borrow means उधार लेना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो यूज द वर्ड्स प्रॉपरली. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. Now today I will teach you the phonic rule which I've been telling you but have not given you enough words. Okay. Now हमने बताया था आपको कि y जो है वो लास्ट में आएगा तो I या तो E का साउंड करेगा करके, मगर आपको इनफ वर्ड्स नहीं दिया था. उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि जब I है, आपको I, ये जो I है वो IGH और ये भी I का साउंड करता है, IGH Y और ओके. सो दिस इज द रूल. ओके, IGH तो डायग्राफ भी बताया मैंने, स्प्लिट डायग्राफ जो है ये सब भी I साउंड करता है और साथ में वावल जब आते हैं ये सब भी I साउंड करता है. करेक्ट. Y, सो I का साउंड, ये I का साउंड जो है वो IGH आया तो I साउंड है. ये भी I साउंड है, I साउंड है, ये भी I साउंड है, ये भी I साउंड है. तो I के कितने साउंड हुए? 1. ये खुद का तो एक हुआ. ये ई साउंड करता है. जब अपना बड़ा आपका नाम लेता है तब I का साउंड करेगा. 1 2 3 4 5. तो 5 तरीके का साउंड मींस डिफरेंट वर्ड्स कॉम्बिनेशन में, आप अल्फाबेट्स लेटर कॉम्बिनेशंस में I साउंड करता है. करेक्ट. अभी पहला ये देखेंगे हम, नाइट. ये देखिए IGH, ये ट्रायग्राफ है. न आई ट, नाइट. साइट, फाइट, ब्राइट, लाइट. सब जगह पे देखिए IGH 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 आ रहा है. ओके. तो जब भी आपको टी के पहले आई का साउंड आ रहा है तो मोस्टली IGH ही रहेगा. तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे. जहां पे आप लाइट का स्पेलिंग बोलूंगी तो आप लाइट ऐसे नहीं लिखोगे, ये रॉन्ग रहेगा. ओके. तो आई ट ट आ रहा है उससे पहले तो आप IGH ही लिखोगे, लाइट ऐसे लिखोगे. ओके, क्लियर. तो कब लाइट IGH लिखना है अभी मैंने बता दिया. ट के पहले आई का साउंड आया तो लाइट, माइट, ब्राइट. ये देखिए यहाँ पे ब्राइट, ये ब र कॉन्सोनेंट ब्लेंड आ रहा है यहाँ पे देखिए, ब राइट, ब्राइट. तो ये सब भी आपको IGH आएगा. ओके. और यहाँ पर ये Y जो है I का साउंड जब करता है, आपको कहाँ पर करता है? जैसे क्राई हो, फ्राई हो, ट्राई हो, यहाँ सब I का साउंड कर रहा है.
अगर यहाँ पे मैंने बताया था कभी कभी आई जो है ई का साउंड भी करता है। वो कब करता है? जैसे कि कैंडी, क एंड ई का साउंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर वाई क्या कर रहा है? ई का साउंड कर रहा है, कैंडी। जैसे बेबी, बेबी शादी का नाम बेबी है, तो यहाँ पर बेबी वाई क्या कर रहा है? ई का साउंड कर रहा है, आई का साउंड नहीं कर रहा है। ब ए बी, बेबी, तो यहाँ पर बेबी ई साउंड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे वाई जो है, तो आपको दोनों ट्राई करना है। यहाँ पे कैंड आई, कैंड आई नहीं, कैंड आई नहीं है, तो वाई क्यों आ रहा है? वो तो वाई को ई ट्राई करती हूँ अभी, कैंड ई, कैंडी, तो ये सही आ रहा है, कैंडी। तो ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड में कब आपको ई साउंड करता है, कब आपको आई साउंड करता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वाई कब क्या साउंड करता है। ओके, ये शाई, ये सब माई, यहाँ पे सब आई आई साउंड कर रहा है, माई शाई ऐसे। ओके, ये मैरी, हरी, ये सब यहाँ पे। और एक यहाँ पे जहाँ ई साउंड करता है, यहाँ पे आई साउंड करता है, ये मैरी, बेबी, कैरी, पोनी, ई, ये सब यहाँ पे सब में ई साउंड करता है। देखिए यहाँ पे सब में आई साउंड करता है। ओके, क्लियर? बॉडी, बहुत सारे वर्ड्स है, मैं जस्ट एक आपको ये दे रही हूँ। और दूसरा जो है आपका स्प्लिट डायग्राफ है। स्प्लिट डायग्राफ में आपको मालूम है बहुत सारे हैं। स्प्लिट डायग्राफ में जैसे ट्राई, ये यहाँ पर आएगा, सॉरी, स्प्लिट डायग्राफ भी आता है जहाँ पे बाइक, लाइक, यहाँ पर स्प्लिट डायग्राफ है, यहाँ पर सब में स्प्लिट डायग्राफ है। और ये जो है ट्राइस, ओके, ड्राइस, क्राइस, क्लियर? गॉट इट? यस। यहाँ पे देखिए पाई, टाई, लाई, डाई, ये सब वर्ड्स ऐसे आते हैं। ओके, तो वाई जो है पहला शुरू में आता है तो य का साउंड करता है, जैसे कि याम, यल। यहाँ पे देखिए य का ही साउंड किया, यह एल, यह एम, याम। तो आज हमने क्या देखा? जो वाई है वो य का साउंड करता है, अगर आगे में आए तो पीछे आए तो कभी आई का साउंड निकालता है, कभी ई का साउंड निकालता है। आई का साउंड क्या है? ई, ई, ई। और ई का नाम बोलता है, ई, ई, ई करके। और यहाँ पर देखा हमने कि आई जो है इतने सारे स्पेलिंग कॉम्बिनेशन है, तो कभी आई जी एच है, तो कभी वाई आई का साउंड करता है, तो कभी स्प्लिट डायग्राफ आता है, तो कभी यहाँ पर आई ई जो है वावल टीम करके आपको पहले ही सिखाया हुआ है हमको, तो पहला वाला अपना नाम बोलेगा आई आई करके, उसका साउंड नहीं बोलेगा करके। क्लियर? राइट? तो इतना तक याद रख लीजिएगा। ये सब वाई और आई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अक्षर में आते हैं, तो आपको जब पढ़ रहे हो तो आप उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन करके पढ़िएगा। तो ये रूल सब जैसे यहाँ प्राइज करके बेबी शाजी ने लिखा है, आइज, यहाँ पे वावल, ये स्प्लिट डायग्राफ है यहाँ पे, तो इसने अपने मैजिक करके उसका आई का नाम बोलने को बोला, प्राइज, आइज, करेक्ट बेबी शाजी, करेक्ट, प्राइज। Understood? Any doubts in this? Okay. So practice this. Will write more words. बहुत सारे और words लिख के भेजिए, IGH words लिख के भेजिए, जहाँ पे Y अपना E का साउंड निकालता है, Y अपना I का साउंड है, बहुत सारे words हैं। So practice कीजिए। मैंने जो लिखा उसके अलावा नए words लिख के भेजिए। Yes, Thai. Very good. Anjali Soni ji is saying Thai. यहाँ पे थ, आई, देखा आई का साउंड निकाला है, थाई। वेरी गुड अंजलि सोनी जी, वेरी गुड। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिए, IGH वर्ड्स, वाई आई, IES, एवरीथिंग प्रैक्टिस इट। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, otherwise I'll wind up the session. That's all, right? No doubts, right? Clear? Give me a thumbs up if there's no doubts. Yes, okay.
फाइट, बेबी शाह जी ने फाइट लिखा हुआ है, बेबी शाह जी मैंने राइड, हाँ राइड, ओके वेरी गुड 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 ऑल ऑफ देम। संगीता देवी जी आपने क्या लिखा है? वो गलत है आपने जो स्पेलिंग लिखा है, तो 8। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू गर्ल्स, टेक केयर।